Hi, welcome to the new episode of Sportsy. Sports makes us aspire, inspire, and motivate. So, hence, let's do aim sport. Today, we have with us a canoeing athlete, Namita Chandel. Namita took up canoeing in 2010 in the singles event. Only a year later, she qualified for her first ever national games and has been performing exceedingly well ever since. Coming from a very small village in Madhya Pradesh, she took up a very niche sport. Namita has made huge strides in the sport. Presently, along with her career, she is working with Madhya Pradesh Sports Ministry as a Grade 3 officer. In 2019, she became the first ever Indian to qualify for the finals of the World Championship in Hungary and finished ninth in the event, achieving the country's first finish thus far. Her immediate goal now is to perform well in the upcoming qualifying events that's going to help her secure her place for 2021 Tokyo Olympics. She says the biggest dream that she has is having a tiranga around her shoulder and waiting for the national anthem to be played for her. Namita defines very good saying, literally, with her work. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. We have with us a state ambassador for Madhya Pradesh of Beti Bachao, Beti Padhao, and a Go Sports Foundation athlete, Namita Chandel. Thank you for liking, thank you for watching, and thank you for sharing. But please do subscribe on our channel Sportsy Says and help us spread the word about Sportsy. We go with the same handle Sportsy Says across all the social media platforms. Our today's episode is in association with Go Sports Foundation. Go Sports Foundation is a national award-winning non-profit organization working towards the development of some of the India's talented, emerging and elite athletes, competing across Olympics and Paralympic disciplines through their athlete scholarship and knowledge building program. Go Sports Foundation is joined by former Indian cricket captain Rahul Dravid and All India badminton champion Pulela Gopichan as their board of advisors. Go Sports talks about their vision as they have directed their projects and initiative towards enabling sports excellence. And they work with the mission is to use sports excellence as a vehicle for social change and tool to improve the lives of individuals, communities, and the state of our nation. At the National Sports and Adventure Award distributed on 29th August 2019, by Honorable President of India, Go Sports Foundation was awarded with the Rashtriya Khel Protsahan Puraskar under the category of Identification and Nurturing of Budding Young Talent. Donate now and help Go Sports Foundation create more sporting champions from India. Who knows? The next Indian athlete standing on the podium at the Olympics or Paralympics could be there because of your support. To get involved and donate for the cause, you can visit www.gosportsfoundation.in. Click on Get Involved and you will be directed to Donate Now page. For any queries or to get in touch with more programs with Go Sports Foundation, you can also write to foundation@gosports.in. You will find a donation link in the description of our episode. Please donate now and contribute towards making India a sporting nation. Hey, hi Namita. Really amazing to have you on our platform. And the platform is Sportsy, where we talk about so much of sports. This is one sport. आपका जो sport है, it is something completely different. Canoeing. Uh, Yes. Not many people have heard of it in India, honestly. And we also know that you are the first ever Indian to qualify for the finals of World Championship. So अगर आप ही पहले हो 2 साल पहले तो उसके पहले तो किसी ने सुना भी नहीं होगा किया भी नहीं होगा. मेरे को पूछना था आपको कि आप कनोइंग में आए कैसे एंड हाउ डिड यू एक्चुअली start enjoying this sport and actually thought of making it professional for you? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया कैनोइंग की जर्नी जानने के लिए, तो थैंक यू वेरी मच। और कैनोइंग मैंने स्टार्ट किया था 2011 10 11 में स्टार्ट किया था। और जब कैनोइंग स्टार्ट किया था तो सीरियसली मुझे नहीं पता था कि कैनोइंग होता क्या है। इवन मेरे गांव में भी किसी को नहीं पता था क्या कैनोइंग क्या होता है। मेरे कैनोइंग करने के कुछ सालों बाद भी किसी को नहीं पता था कि कैनोइंग क्या है और मैं क्या करती हूँ। तो जब 2010 में एक न्यूज़पेपर की छोटी सी कटिंग है जो मध्य प्रदेश एकेडमी खेल एकेडमी है मध्य प्रदेश में, उसकी एक छोटी सी एड थी, उसको हमने पढ़ा। मम्मी ने एक्चुअली पढ़ा वो, और पढ़ के बोला कि स्विमिंग तो आती है, पापा ने स्विमिंग तो सिखाई है, तुम नदी में जाते हो। तो हमने बोला हाँ स्विमिंग आती है। तो उसमें कोच का नंबर लिखा हुआ था, उस नंबर पे कॉल किया एमपी एकेडमी के कोच को और जस्ट पूछा कि क्या है, आप उसमें स्विमिंग टेस्ट मांगा है हमने। बाकी उसमें और
जो भी डिटेल्स थी वो सारी मम्मी ने पढ़ी, तो ऊपर नेवी का भी एक ऐड दिया हुआ था। तो मेरा मैं तो बहुत छोटी थी, तो मैंने दोनों चीज को कंबाइन कर दिया कि नेवी है, स्विमिंग है, तो कुछ पक्का दोनों का कनेक्शन है। तो हमने डिसाइड किया कि हम भोपाल जाएंगे और हम ट्रायल्स देंगे। तो हमने जब कोच को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आप भोपाल आ जाइए और यहाँ पे ट्रायल्स होते हैं, आप ट्रायल्स दे दीजिए, अगर आप अच्छा करेंगे तो हम सिलेक्ट कर लेंगे आपको। तो हमें तब भी नहीं पता था कि हम किस लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगा क्योंकि मैं पहले से जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत शौक था पुलिस में और बाकी चीजों में इंटरेस्ट था कि मुझे हाँ जाके भर्ती होना है और मुझे पुलिस बनना है और ये वो बहुत सारी चीजें। तो हम ट्रायल देने भोपाल आए, तो उन्होंने ट्रायल्स लिए, उन्होंने स्विमिंग कराई, रनिंग, सिटअप, पुशअप, बहुत सारे ट्रायल्स उन्होंने लिए। तो उसमें से बहुत सारी चीजें मैं नहीं कर पाई जो मैंने कभी नहीं करी थी। लाइक चिनअप्स हमने कभी नहीं करे, क्योंकि चिनअप्स क्या होते हैं हमें गाँव में वो भी नहीं पता थे। तो वो सारे टेस्ट उन्होंने किए, उसके बाद उन्होंने रनिंग भी कराई। फिर जब स्विमिंग टेस्ट हुआ सब सारे जो उनके क्राइटेरियाज थे वो सारे फुलफिल हुए। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब आप घर जा सकते हो, जब भी हम आपको सिलेक्ट करेंगे तो हम आपको कॉल करेंगे, आप तभी आ सकते हो। तो उसके बाद हम घर चले गए, हम भूल गए कि क्या है कि हम भोपाल क्यों गए थे। हमने सोचा बस हो गया, अभी कुछ होगा तो वो कॉल करेंगे। हमारे जाने के एक हफ्ते बाद उन्होंने हमें कॉल किया, जो कोच थे एमबी एकेडमी में, देवेंद्र गुप्ता, उन्होंने कॉल किया, बोला आपकी बच्ची सिलेक्ट हो गई है हमारे वाटर स्पोर्ट्स कैकिंग कैनोइंग के लिए, तो आपको उसको सिर्फ हमारे पास भेजना है, जो उसके यूज का सामान है वो लेकर, बाकी सारी चीजें हम प्रोवाइड कराएंगे। तो एक तरीके से यहाँ पे सब कुछ फ्री था, रहना, हॉस्टल में रहना, खाना पीना, एवरीथिंग इज फ्री। तो उन्होंने बोला कि बस आपको अपने बच्चे को उसके पर्सनल यूज के सामान और कपड़े वगैरह लेके भेजना है। तो पहले मम्मी पापा सोचने लगे कि क्या करेंगे, भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। फिर उन्होंने थोड़ा एमपी एकेडमी के बारे में पता किया एंड देन की डिसाइड किया कि ठीक है हम जाएंगे बोल के वो मेरे साथ आए। 3 दिन वो होटल में स्टे किए, मुझे हॉस्टल में छोड़ा, कोच से मिले। तो मेरे लिए पहली बार हॉस्टल था, मैं कभी घर से बाहर निकली नहीं थी। और मम्मी पापा उसके बाद 2-3 वहाँ यहीं भोपाल में रुके कि अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो हम घर लेके जाएंगे। और तब भी हमको नहीं पता था कि मैं भोपाल में क्यों आई हूँ और हॉस्टल में क्यों मुझे रखा गया है। तो ठीक है, उसके 3 दिन बाद जब सारी चीजें नॉर्मल थी, उसके बाद मम्मी पापा वापस चले गए। तो घर से दूर रहना थोड़ा डिफिकल्ट था। देन हमारा प्रैक्टिस जाना स्टार्ट हुआ, तो नॉर्मल फिजिकल चल रहा था, सब कुछ ठीक था। लोग बोट चलाते थे, मैं देखती थी, मुझे नहीं समझ में आता था कि क्या हो रहा है। तो मेरे जो कोच है देवेंद्र गुप्ता, जो मुझे बताते थे कि ये कैकिंग है, ये कैनोइंग है, वो मुझे दोनों बोटें दिखाते थे, कैकिंग की भी और कैनोइंग की भी। तो वो मुझे डेली उस चीज के बारे में, मतलब 1 वीक उन्होंने सिर्फ मुझे बताया कि ऐसे बोट चलती है, कैकिंग की बोट ऐसे चलती है, कैनोइंग की बोट ऐसे चलती है। एंड देन 1 वीक बाद उन्होंने मुझे पूछा कि तुम क्या करना चाहती हो, तुम ये दोनों साइड से चलाने वाली बोट चलाओगी या सिर्फ एक साइड से पैडल चलाने वाली बोट चलाओगी। तो मैं एकदम श्योर थी कि मुझे कैनोइंग ही करना है। तो मैंने बोला सर वो भैया जो घुटने में बैठे हैं और पैडल एक साइड से मार रहे हैं, मुझे वैसे करना है। तो सडनली वो उन्होंने मुझे बोला कि कैनोइंग तो इंडिया में वुमेन्स का होता ही नहीं है, तो वो आप नहीं कर सकती हो, आपको कैकिंग ही करना है। तो थोड़ा तो बुरा लगा कि हाँ मैं कैनोइंग करना चाहती हूँ और सर बोले कैकिंग करना है, तो पता नहीं था कि क्या है। तो फिर उन्होंने कैकिंग का थोड़ा बेसिक स्टार्ट कराया, बेसिक स्टार्ट किया और स्टेट चैंपियनशिप भी खेली। 3 महीने के बाद में कैकिंग में खेली मैंने स्टेट चैंपियनशिप। और फिर नेशनल के 1 मंथ पहले एक प्रपोजल आया कि कैनोइंग वुमेन जो है वो इंडिया में हम स्टार्ट करेंगे 2011 में, जनवरी में, जो पहला नेशनल मैंने खेला था। तो जब भी नेशनल टीम का लाइनअप था, एमपी टीम पूरी लाइनअप खड़ी थी। तो पूछा गया कि कौन कौन कैनोइंग करना चाहता है, कौन लड़की है जो कैनोइंग में आना चाहती है। तो सबसे पहला हाथ जो था मेरा था कि मैंने खड़ा किया था। तो मेरे कोच थे, वो मुझे देख के हंसने लगे, बोला कोई हाँ बोलता या नहीं बोलता मुझे पता है, ये जरूर कैनोइंग के लिए हाँ बोलेगी। और उसके बाद फिर 15 डेज थे हमारे पास, तो मे भी 15-20 डेज थे नेशनल्स के लिए। और कैकिंग कैनोइंग को सीखने के लिए लगभग 6 से 8 महीने चाहिए होते हैं अगर आपको प्रॉपर उसमें बैलेंस करना है। तो जो मैंने पहला नेशनल खेला वो 15 डेज में सिर्फ बैलेंस करके खेला था, और उसमें मैंने ब्राउन्स मेडल भी लिया था। तो ब्राउन्स मेडल ले लिया, अभी खुश हो गई कि ब्राउन मेडल ले लिया। तब भी कैकिंग कैनोइंग को नहीं समझा था मैंने, मतलब कैकिंग कैनोइंग की हाँ ये समझ में आया कि बोट चलाना है, कंपटीशन होता है, उतना सीरियस में बिल्कुल भी नहीं थी। तभी सब
एवरीथिंग इज गोइंग लाइक कि हाँ मजे मजे में चल रहा है सब कुछ। हाँ, एंड देन जब मेडल मार लिया उसके बाद थोड़ा थोड़ा लगा कि यार कुछ तो अच्छा करना चाहिए, अभी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ब्राउन्स लिया है तो अभी गोल्ड लेना है, सिल्वर लेना है, अच्छा कुछ अचीव करना है। देन मेरी जर्नी उसके बाद स्टार्ट हुई। मतलब कैकिंग कैनोइंग के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी, मुझे 0% भी कैकिंग कैनोइंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आपने क्या सोच के कैनोइंग सिलेक्ट किया कि वो घुटने में बैठ के एक करना है, वो पसंद आया आपको? मतलब आपको ऑप्शन दोनों था, तो आपने क्या सोच के सिलेक्ट किया? मुझे वो अच्छा लगा। बस जब मुझे वो डेली ये चीज दिखाते थे, वो हाँ, दोनों साइड से पैडल और एक साइड पे पैडल चलाना और दोनों साइड में पैडल चलाना, तो मुझे लगा दोनों साइड से पैडल चलाना तो ठीक है, हो जाता है वो तो। पर एक साइड से पैडल चलाना और उसी पैडल से आपको अपनी बोट को सीधा भी करना है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पता नहीं क्यों मुझे लगा कि हाँ कुछ ऐसा चुनो जिसको करने में मजा आना चाहिए, तो मुझे वो कैनोइंग पसंद था। और जब सीरियसली मतलब बाय गॉड और बाय लक पता नहीं मुझे क्या है कि मेरे स्टार्ट करने के 6 मंथ बाद कैनोइंग वुमेन इंडिया में लॉन्च हो गया, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि हाँ, मेरा कैकिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मुझे कैकिंग पसंद ही नहीं था, मैं हाँ। करना ही नहीं चाहती थी। 6 मंथ में बहुत सारे लोग मेरे साथ आए थे, उन लोगों का बैलेंस भी हो गया था और वो बोट भी चलाने लगे थे, मैं फिर भी गिरती रहती थी। मैं बोट में बैठती थी और मैं पानी में कैप्साइज हो जाती थी, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं थी उस चीज के लिए। एंड जब मैंने कैनोइंग स्टार्ट करी तो वो मैंने जल्दी किया, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट था, मैं करना चाहती थी। तो मुझे कैनोइंग बहुत पसंद है, मैं ये बोल सकती हूँ। मैं जिस चीज के बारे में नहीं जानती थी फिर भी मुझे वो पसंद था, तो मैंने इसलिए कैनोइंग को सिलेक्ट किया। तो वो एक है ना, हिंदी कहावत है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आई थिंक आपका तो, आपके लिए तो लिटरल हो गया वो तो। सीरियसली। पानी में लहरें हैं, कोशिश की तो नौका पार हो ही जाएगी। एंड इवन कैकिंग कैनोइंग मुझे बोलना भी नहीं आता था, मैं तो भी नहीं बोल पाता था। मेरी फैमिली में भी मम्मी पापा भी नहीं बोल पाते थे, मैं भी नहीं बोल पाती थी। तो वो मुश्किल था, मतलब बहुत अजीब सा नाम हो गया था हमारे लिए, हमने कभी सुना नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। यहाँ भोपाल आने के बाद ही देखा कि यहाँ कैकिंग क्यूनिंग जैसी भी कुछ इवेंट्स होते हैं। और इवन ये भी नहीं पता था कि स्पोर्ट्स में इतना स्कोप होता है, कभी सोचा ही नहीं स्पोर्ट्स में कुछ होता है। बस पढ़ाई करना है, जॉब में जाना है, ये सब था। पर हाँ, मैं स्कूल्स के सारे इवेंट्स में पार्ट लेती थी, चाहे वो कोई सा भी इवेंट होता था, पर मुझे जाना होता था बस उसमें। ओके। सो आपने एक तो पहले बोल दिया कि मेरा एक क्वेश्चन था कि आपको एज एज अ वुमन, एज अ लेडी और गर्ल इन दिस स्पोर्ट क्या चैलेंज फेस करने पड़े? आपने पहले बोला तो पहले तो स्पोर्ट था ही नहीं लड़कियों के लिए। आप इट वाज जस्ट लक बाय चांस, आपको 6 महीने के अंदर वो एसोसिएशन हो गया और गेम आ गया। लेकिन उसके बाद भी जो ऑलमोस्ट लास्ट 8-9 साल का पीरियड है, एंड वी नो दैट देयर आर नॉट मेनी गर्ल्स इनटू कनोइंग एंड kayaking and everything. So do you think that, did you feel any difference or discrimination at least in your sport? एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया था, जब मैंने स्टार्ट किया था, तब लोगों का ये मानना था कि कैनोइंग वुमेन्स के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो जो कैनोइंग की पोजीशन है, जो पोस्चर होता है कैनोइंग में बैठने के लिए, तो बेसिकली जो कैकिंग कैनोइंग के लोग थे उनका, उनमें से कुछ लोगों का, पर्टिकुलर हम किसी का नाम नहीं ले सकते या किसी को बोल नहीं सकते, मतलब कुछ लोगों का ये मानना था कि कैनोइंग करने से वुमेन्स में आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लाइक प्रेगनेंसी वगैरह को लेके, कि इन सारी चीजों में दिक्कत होती है, आफ्टर मैरिज बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। तो कुछ उस टाइम पे ऐसा था कि कैनोइंग नहीं होना लड़कियों के लिए सही नहीं है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर मुझे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे सिर्फ कैनोइंग करना था। तो एंड देन उसके बाद कैनोइंग में धीरे धीरे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। और अभी अगर हम देखेंगे तो कैकिंग से ज्यादा कैनोइंग में जो है हमारा कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इंडिया में बहुत सी लड़कियां हैं जो कैनोइंग में आगे बढ़ रही हैं। इवन वर्ल्ड लेवल पे कैनोइंग जितना ज्यादा इम्प्रूव हुआ है कैकिंग की, अकॉर्डिंग टू कैकिंग, कैनोइंग को लोग अभी बहुत ज्यादा कर रहे हैं वुमेन्स के लिए, तो पहले से ज्यादा बहुत बेहतर हो गया है अभी। तो स्टार्टिंग आपने, में प्रॉब्लम था, हाँ, पर अभी बिल्कुल भी नहीं है। अभी अभी हो गया। सो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, लेकिन लोगों के अलग अलग ख्यालात थे कि इससे ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। एंड लेकिन अच्छा हुआ आपके घर वालों ने इसके हाँ, बारे में सुना नहीं कभी और आपको कंटिन्यू करने दिया। नहीं नहीं तो एक्चुअली मेरे घर वाले, नहीं नहीं एक्चुअली मेरे घर वाले इसके बारे में सुनते तो भी मुझे कभी मना नहीं करते, क्योंकि ओके, मुझे फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा है। वेरी गुड। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एट द एंड ऑफ डे। लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, फैमिली सपोर्ट
टू pursue their dream, pursue their sport, उसके लिए बहुत 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 मायने रखता है. एंड आई थिंक दिस इज बिग बिग थैंक यू टू योर पेरेंट्स जिन्होंने आपको कंप्लीट सपोर्ट किया. फैमिली का सपोर्ट तो मैं ये बोल सकती हूँ कि बिना फैमिली की सपोर्ट से मैं कुछ भी नहीं थी. अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो बिकॉज ऑफ देम, क्योंकि उनका ही शायद एक डिसीजन था कि हाँ भोपाल हम भेजते हैं, क्योंकि मैं तो कभी घर से बाहर निकल ही नहीं पाती अगर वो ये डिसीजन नहीं लेते थे. तो आपके फैमिली ने इतने साल पहले डिसीजन लिया कि आप चलो आप अपने यहाँ से जाएगी, एटलीस्ट भोपाल जाएगी, और वहां से आप चेक रिपब्लिक गई, शंघाई गई, पोलैंड गई, हंगेरी गई, और वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अलग अलग टूर्नामेंट्स में. सो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए, एंड व्हाट डिड यू लर्न? आप वहां जाके सीखे क्या? हर एक टाइम पे अलग अलग कुछ सीख होगी आपके लिए, तो उसमें क्या सीखे आप? 2010 में जब घर से बाहर भोपाल आए तो थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि पहली बार घर छोड़ा, और उसके बाद नेशनल्स खेलने के लिए बाहर गई. तो फैमिली वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चला स्पोर्ट्स के बारे में, और इवन पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैं अकेली एक ऐसी लड़की हूँ जो स्पोर्ट्स के लिए बाहर आई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर आए हैं, पर स्पोर्ट्स के लिए मैं अकेली ही बाहर आई हूँ. और फिर जब कैनोइंग की जर्नी स्टार्ट हुई तो एक जुनून था कि हाँ बस अभी करना है, कुछ भी करके बस अचीवमेंट देने हैं, बहुत सारे अवार्ड्स लेने हैं और बहुत सारे मेडल्स लेने हैं, ये सारी चीजें. तो पता ही नहीं चला कि ये 10 साल 11 साल कैसे कैनोइंग में निकल गए. और पहले जब मैं भोपाल आई थी तो मैं अपने घर वालों से हर 1 घंटे में, आधा घंटे में मेरी बात होती थी, कि मैं हर आधा 1 घंटे में जब भी फ्री होती थी मैं पहले मम्मी को पापा को कॉल कर लेती थी. अभी 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, वीक भी हो जाता है. ट्रेनिंग के लिए गई तो मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा. हर कंट्री अलग अलग कंट्री से अलग अलग चीजें सीखने मिलती है, कि कैसे हम अपने ट्रेनिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने परफॉर्मेंस को अप कर सकते हैं, और कैसे अगर हमारे साथ डाउनफॉल आता है तो हम उसमें कैसे खुद को उन सारी चीजों से बाहर निकाल के अच्छा अपना परफॉर्मेंस जो है वो कर सकते हैं. तो अलग अलग जगह पे मैंने अलग अलग चीजें सीखी है. मैंने सीखा टी जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है. मतलब हमारी इवेंट जो है सिंगल डबल फोर सब में होती है, पर अगर हम साथ टीम के साथ में ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आता है. सो हम हमारे इस चैनल पे हम लोग जो बात करते हैं, स्पोर्ट्स इज एस्पिरेशनल, इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल. इसके बारे में आपका क्या मानना है कि आपका एस्पिरेशन क्या है? आपको किसने इंस्पायर किया, और व्हाट मोटिवेट्स यू टू बी अ बेटर वर्जन? हर एक दिन आपका खुद का अलग वर्जन, अच्छा वर्जन होने के लिए आपको क्या मोटिवेट होता है, करता है? एक्चुअली इंस्पायर्ड तो मैं कभी स्पोर्ट्स में मैं ये बोल ही नहीं सकती कि मैं किसी से हुई हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी मैंने आपको बताई है कि वो कैसे स्टार्ट हुई है. तो स्पोर्ट्स का तो कोई नाम ही नहीं था लाइफ में कि क्या होता है, और स्पोर्ट्स के बारे में कुछ सुना भी नहीं था. पर हाँ, भोपाल आने के बाद स्पोर्ट्स के बारे में बहुत कुछ समझा जाना. तो इंस्पायर तो मैं अपने मम्मी डैडी से ही हुई हूँ. तो वो मुझे बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसी चीजें वो करते हैं जिससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ. तो मैंने उनकी जर्नी जो हमने देखी है जब हम छोटे थे, तो उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी साइड में करके हम लोगों को बड़ा किया. तो वो एक टाइम था और आज का एक टाइम है जब हम उनको देखते हैं तो उन्होंने बहुत बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हमारे लिए. हम भाई बहन जब हम बातें करते हैं तो उन्होंने जो किया है तो उनको देख के हम बहुत इंस्पायर्ड होते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया. क्योंकि जब मम्मी की शादी हुई थी तब मम्मी सब स्कूल में पढ़ती थी और उनकी शादी हो गई थी. शादी के बाद उन्होंने पढ़ाई करी, पापा ने उन्हें पढ़ाई कराई. मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो वो बताते हैं. और हमारी फैमिली जो है बहुत बड़ी है. उसके बाद फिर उन्होंने अगर फैमिली छोड़ी तो फिर वो कैसे सारी चीजों को लेके इतना चीजों को इम्प्रूव कर पाए. तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा तो देखने में ऐसा है कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है. तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया. और उसके बाद अगर पहले मैं मोटिवेट होती थी तो लोगों को देख के हो जाती थी कि हाँ अभी सिल्वर है तो गोल्ड मारना है, ब्राउन से तो सिल्वर मारना है. और अभी लास्ट 5 ईयर से मैं सबसे ज्यादा मोटिवेट खुद से होती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों से मोटिवेट होने से ज्यादा बेहतर है कि हम खुद से मोटिवेट होते रहे. क्योंकि लाइफ का कुछ 3-4 सालों में लाइफ में ऐसी चीजें हुई है जिसके बाद शायद अगर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, अपने विल पावर को थोड़ा मजबूत नहीं करती, तो शायद मैं स्पोर्ट छोड़ चुकी होती. पर जैसे
एक तरीके से मैं गो स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा थैंकफुल कहना, गो स्पोर्ट्स के लिए मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि एक जो मेरा सबसे वीक टाइम था, जिस टाइम पे मैंने सोच लिया था कि अभी एक तरीके से मैं भी हार मान चुकी थी कि हाँ भी नहीं होगा, नहीं कर सकती, तो वो स्पोर्ट्स मेरी लाइफ में पता नहीं कैसे आया, और उसके बाद मैंने वापस से रीस्टार्ट किया। तो उसके बाद फिर मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाके अगर टॉप 18 में आई हूँ, तो थैंक्स टू गो स्पोर्ट्स। और मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, और गो स्पोर्ट्स में भी बहुत, जैसे मेरे जो एथलीट मैनेजर है उनसे जब मैं बात करती हूँ, पहले एथलीट मैनेजर कुंदन थे, अभी निशित है, तो वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और जब मेरे पास कोई नहीं होता है, मैं अकेली होती हूँ, तो मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ कि कभी हम बीमार होते हैं तो भी हम परफॉर्म करते हैं, कभी हम नॉर्मल होते हैं तो भी परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मोटिवेट करने में हेल्प करती है। तो एकदम मोटिवेशन के लिए तो मैं खुद को थैंक यू बोलूंगी और गोस्पोर्ट्स को थैंक यू बोलूंगी। नहीं यार, आपने जो गो स्पोर्ट का नाम लिया था, इनफैक्ट मैं आपको पूछने वाला था कि आप आपके जर्नी में गो स्पोर्ट का योगदान क्या है, लेकिन आपने जो बोल दिया, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जब डाउन पीरियड होता है वो टाइम पे आपको सपोर्ट करता है, आई थिंक वहां पे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है इस चीज का। वो स्पोर्ट उस टाइम पे मेरी लाइफ में आया जब मैं एकदम मतलब खुद के विल पावर से भी इंसान कितना खुद को स्ट्रॉन्ग करेगा, पर वो स्पोर्ट उस टाइम पे मेरे पास आया जब मेरे पास सब कुछ खत्म जैसे ही था, कि मैंने सोचा था कि अभी परफॉर्मेंस आएगा नहीं आएगा पता नहीं, मैं कैसे रिकवर करूंगी चीजों को लेके, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी लाइफ में, मतलब एकदम सब कुछ खत्म जैसे हो गया था, तब वो स्पोर्ट्स मेरी लाइफ में आया। तो वो एकदम बोलते हैं ना, एकदम भगवान किसी की लाइफ में एकदम से आ जाते हैं, ये वाला सिस्टम है कि हाँ गो स्पोर्ट्स ने आके फिर हेल्प करी, सपोर्ट किया, तो आज वापस से सारी चीजें रिकवर करके मैं वापस से अपने प्लेस में वापस पहुंच गई। वेरी गुड। जैसे मैं आपके पेरेंट्स को थैंक यू बोल रहा था, वैसे ही मेरे तरफ से गो स्पोर्ट को भी थैंक यू, गो स्पोर्ट फाउंडेशन को, जो टाइम पे आए, एंड आई थिंक आप जैसे एथलीट को सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ से इंडिया को बहुत सारी उम्मीदें हैं आफ्टर ऑल दिस थिंग। सो एक्चुअली मैं मेरे डिपार्टमेंट को भी थैंक यू बोलूंगी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, जो मध्य प्रदेश एकेडमी जो है, करेक्ट। यहाँ पे जैसे गो स्पोर्ट बहुत से बच्चों को स्पॉन्सर होता है, तो एमपी एकेडमी जो है, यहाँ पे भी सेम चीजें होती हैं। तो यहाँ पे मोस्टली ऐसे जो बच्चे हैं जो चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वहाँ पे इनका बच्चों का रहना खाना पीना, तो मेरी जर्नी एमपी एकेडमी से स्टार्ट हुई, और जब मेरा पीक टाइम आया तो गो स्पोर्ट्स ने हेल्प करी। तो मेरे लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक किसी से आई थिंक सबको जो जो लोगों ने हेल्प किया उनका क्रेडिट बनता है, और वो उनके हिसाब से आगे, मतलब उनके भरोसे तो हम आगे चले, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज समथिंग शोज द हम्बलनेस दैट यू हैव फ्रॉम योर साइड। सो मेरे को एक क्वेश्चन था, बियॉन्ड स्पोर्ट्स, आप स्टेट के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एम्बेसडर भी है मध्य प्रदेश स्टेट के लिए। सो वो कैसे हुआ, एंड आप इसमें ऐड करेंगे क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ? एक्चुअली मैं बहुत छोटी जगह से हूँ, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब मैं भोपाल आई थी तो किसी को नहीं पता था सिवनी छपारा है कहाँ। तो मैं बेसिकली बहुत एक डिस्ट्रिक्ट है सिवनी मध्य प्रदेश में, और वहाँ का एक छोटा सा गांव है छपारा। तो कभी मैं यहाँ लोगों को छपारा बोलती थी तो लोग, अच्छा वो तुम यूपी से हो, वो यूपी में जो छपरा है, तो मेरे को बोलना पड़ता था नहीं मैं एमपी से ही हूँ, और एमपी में एक छोटा सा गाँव है वहां से हूँ। तो बेसिकली फिर पूछते थे तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है, मैंने बोला सिवनी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो ये सिवनी कहाँ आता है, तो बहुत चीजों को समझाने में वो लग जाता था कि मैं यहाँ से हूँ ऐसे हूँ। पर अभी ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि सब लोग जानते हैं सिवनी कहाँ है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, और जो कलेक्टर थे वहाँ के, उन्होंने डिसाइड किया कि एक हमारे गांव की बेटी इतना आगे जाके इतना सब कुछ करती है, तो ये अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगर उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, तो हो सकता है उसके थ्रू गांव की बहुत सारी बेटियां जो है वो बाहर निकल जाए। क्योंकि अभी भी कुछ गांव जो होते हैं उनमें बहुत रूढ़िवादिता होती है कि उनका मानना ये होता है कि हम अपनी लड़की को बाहर नहीं भेजेंगे, और बाहर भेजेंगे तो कुछ हो जाएगा, हम नहीं पढ़ाई कराएंगे, बस लड़की 17-18 साल की होती है और उसकी शादी करा देते हैं। तो उसके बिहाफ पे जब मैंने जब भी मैं छुट्टी जाती हूँ वहाँ कहीं ना कहीं कोई फंक्शन होते हैं, तो वो एज एन चीफ गेस्ट बुलाते हैं, तो मुझसे पूछा जाता है, तो बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होते हैं और फिर मेरे पास आके पूछते हैं कि हमें हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उसके बाद से गांव में बहुत सारी लड़कियां हैं और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी बच्चियों को बाहर भेजना चालू किया, उनकी पढ़ाई कंटिन्यू कराई।
शादी जो एकदम कर देते थे 18 सालों में, वो भी थोड़ा कम हो गया है। तो ये सारी चीजें जो है, बेटी बचाओ ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते मुझे लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, कि अगर कोई देखता है कि हमारे गांव की लड़की है और फिर ये इतना करती है, तो हमें हमारे बच्चों को भी कराना है। और मैं जब भी घर जाती हूँ तो मैं घर जाने के लिए, अगर मैं बस स्टैंड में बस से नीचे आई हूँ या मैं गाड़ी से जाती हूँ, बहुत सारे लोग मेरे पास आके पूछते हैं, बेटा कब आई हो, कैसे हो, आओ हमारे घर। तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कि लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ। पहले लोग बोलते थे कि हाँ ये उमेश चंदेल की बेटी है, अब बोलते हैं ये नमिता चंदेल के पेरेंट्स है। तो अभी सब सारा मतलब ऐसे हो गया है, तो लोग इंस्पायर होते हैं बहुत ज्यादा। तो लोग उनके बच्चे जो करना चाहते हैं उनको वो कराते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है कि मतलब आपकी वजह से एक तो फर्स्ट वो एरिया को रिकग्निशन मिला, एंड उसके हिसाब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है अपने यहाँ पे। एंड लेकिन इसमें जैसे मैं पहले बोला, मजाक में बोला, लेकिन बेटी खिलाओ, आई थिंक इंडिया के लिए मैक्सिमम एक्कोलेट्स, जो मैक्सिमम मेडल जो आए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो लड़कियों लेके आए। सो वो तो सब नोन है। सो उसके लिए आप क्या बोलते हो कि लड़कियां और कैसे स्पोर्ट्स में आ सकती है और प्रोफेशनली कैसे पिकअप कर सकती है? लड़कियों को स्पोर्ट्स में लेके आने के लिए हमारे जैसे, मैं सारी जगह का नहीं जानती, पर मैं मध्य प्रदेश का ये बोल सकती हूँ कि मध्य प्रदेश में जो आदिवासी क्षेत्र है, वहां पे लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि वो शुरू से पहाड़ चढ़ना, लकड़ी उठाना और समथिंग, मतलब बहुत सारी चीजें वो ऐसी करती हैं जो एक्चुअली में लड़कियां नहीं कर पाती हैं, जो शहरों की लड़कियां नहीं कर पाती हैं। तो यदि स्पोर्ट्स को बढ़ाना है, अगर जैसे हम स्पोर्ट्स में और भी लड़कियों को लेके आना चाहते हैं, तो गांव में कैंपेन वगैरह अगर हम चलाएंगे तो उसमें क्या होगा, लोगों को स्पोर्ट्स के बारे में पता चलेगा। अभी जैसे मुझे कुछ नहीं पता था स्पोर्ट्स के बारे में, मैं तो एक न्यूज़पेपर की कटिंग देख के भोपाल आई थी, उसके बाद में स्पोर्ट्स में मैंने ज्वाइन किया। तो लोगों को पता नहीं होता स्पोर्ट्स क्या होता है, तो उनको स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज देना, ये सारी चीजें अगर हम कंटिन्यूसली करेंगे तो हो सकता है कि स्पोर्ट्स आगे बढ़ पाए। क्योंकि अभी मेरे सिवनी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ जहाँ से मैं हूँ, वहाँ बहुत सारे बच्चे अभी स्पोर्ट्स में है। कोई ताइक्वांडो करता है, कोई कराटे करता है, कोई मतलब सब अलग अलग इवेंट्स में है, बहुत सारे बच्चे जो इवेंट्स कर रहे हैं। तो ऐसे अगर हम अवेयरनेस स्पोर्ट्स को लेके गाँव में जाके अगर लोगों को बताते हैं स्पोर्ट्स कैसे किया जाता है और स्पोर्ट्स में कितने स्कोप है, एक्चुअली लोगों को लगता है स्पोर्ट्स में कोई स्कोप नहीं है, पर एक्चुअली स्पोर्ट्स में बहुत स्कोप है। तो ये सारी चीजें उन्हें बताने की बहुत जरूरत है। सो नमिता, एक क्वेश्चन है, आपका आज तक का सबसे हैप्पी मोमेंट कौन सा था और आपका ड्रीम क्या है? मेरा सबसे हैप्पी मोमेंट, कि मेरा सबसे हैप्पी मोमेंट ये है कि मैं काकिंग किंग की स्टार हूँ, मतलब मेरे लिए ये सबसे बड़ा हैप्पी मोमेंट है। और जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप से वापस आई थी, तो नेशनल चैंपियनशिप जो ऑर्गेनाइज कराई थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, उसमें सिर्फ मैं अकेली एक ऐसी लड़की थी जो सारे नेशनल चैंपियनशिप में एक आइकॉन बनी हुई थी। तो वो मेरे लिए एक अजीब सी अलग ही खुशी थी कि इतने सालों में मतलब जो नेशनल चैंपियनशिप थी उसमें हर जगह सिर्फ मैं मेरा पोस्टर लगा हुआ था, मेरी फोटोज लगी हुई थी। तो मैं जब वो देख रही थी तो मुझे अच्छा लगता, और बाकी जो बच्चे हैं वो भी सारे मेरे पास आके फोटो खींच के, और दीदी आप बताओ कैसे हमको करना है। और उससे भी ज्यादा हैप्पी मोमेंट ये है कि जब मेरे मम्मी पापा प्राउड फील करते हैं, जब उनसे गांव में कोई पूछता है तो बहुत प्राउडली बोलते हैं कि हाँ मेरी बेटी है। और एक टाइम होता है, पहले गांव में लड़कियां ज्यादा हो जाती थी तो लोगों को फिर टॉर्चर करते थे कि तुम्हारी बेटियां ही बेटियां हैं। तो हम 3 बहनें हैं और हमारा एक ही भाई है। तो मुझसे बड़ी दीदी है, फिर मैं हूँ, फिर मतलब एक छोटी बहन और है। तो हम 3 बहनों में कभी पापा को कभी ऐसे नहीं लगा कि मेरी बेटियां हैं तो वो किसी से कम है। तो सबसे हैप्पी मोमेंट वो होता है कि जब कोई बोले कि यार तुमने बेटी पैदा करके, तुम्हारी बेटियां हैं तुम क्या करोगे। और अब का हैप्पी मोमेंट ये है कि जब लोग बोलते हैं कि हाँ यार तुम्हारी बेटी ने देश का भी नाम रोशन किया, तुम्हारा भी किया, और हमारे गांव का भी नाम रोशन किया, तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी मोमेंट हो जाता है कि एक टाइम में वही बोलते थे कि हाँ तुम्हारी बेटियां हैं, 3 बेटियों से क्या करेंगे, और अभी उनकी तीनों बेटियां जो है वो कुछ ना कुछ अच्छी फील्ड में है। तो मेरे लिए वो सबसे ज्यादा हैप्पी मोमेंट होता है कि जब लोग लड़की होने पे प्राउड करते हैं। वेरी गुड, बहुत बहुत उम्दा बात की आपने, बहुत। और इसी में आपका और एक आपका ड्रीम क्या है? मेरा आप ओलंपिक के लिए तैयार हो रहे हो और हमारे सबकी शुभकामनाएं कि आपका वहां पे क्वालिफिकेशन हो जाए, लेकिन
ड्रीम क्या है आपका? ड्रीम है ओलंपिक में गोल्ड मार्क के जब मैं मेडल के लिए अगर वहां खड़ी रहूं और मेरा नेशनल एंथम बज रहा हो, तो मैं बस उस नेशनल एंथम को फील करना चाहती हूँ। तो वो बहुत नेशनल एंथम मेरे लिए एक्चुअली सब कुछ है अभी। मैं उस विक्ट्री पे खड़े होके सिर्फ अपना नेशनल एंथम फील करना चाहती हूँ। आज मैं आपने सिर्फ बोल दिया लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बिकॉज वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। एंड एक्चुअली मैं जब कभी वीडियोस देख रही होती हूँ और नेशनल एंथम हो रहा होता है, तो मेरी आंख से ऑटोमेटिकली आंसू नीचे आ रहे थे, क्योंकि मुझे उस चीज को मुझे पता है कि उस चीज को पाना कितना मुश्किल है, वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है। तो बस मेरा एक ड्रीम है कि मुझे वो नेशनल एंथम सुनना है वहां खड़े होके, कि मेरे गले में मेडल हो और मेरे ऊपर तिरंगा हो और मैं उस नेशनल एंथम को फील कर पाऊँ वहां खड़े होके। एंड हम पूरे देश की उम्मीद है और पूरी की पूरी मनोकामना है कि आप ये करें, आप सक्सेसफुल हो। आपकी अमेजिंग जर्नी है जहाँ पे आप फर्स्टली तो आपके पेरेंट्स को सैल्यूट जिन्होंने ये करके दिखाया। उसके बाद आपकी एकेडमी, गो स्पोर्ट, हर एक चीज है जो आपके लिए आते गई है, बट फाइनली एट द एंड ऑफ द इट्स योर ओन अचीवमेंट द वे यू हैव अचीव द होल थिंग। लेकिन ये इसमें एक लास्ट क्वेश्चन मेरा था, जो आपको कभी ना कभी कुछ ऐसी जो सलाह मिली होगी जो आपके जहन में रह गई, वो ऐसे क्या थी जो आप न्यू जनरेशन एथलीट को पास ऑन करना चाहोगे? न्यू जनरेशन एथलीट्स को मैं सिर्फ एक ही बात पास ऑन करना चाहूंगी कि लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मेरी लाइफ में भी आया और वो बहुत बुरा था मेरे लिए। बुरा इतना मैं बोल सकती हूँ कि एक तरीके से मेरे लिए मर के वापस जिंदा होने जैसा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कभी खुद से हार मत मानना। यदि आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स या आपके कोचेस आपसे बोल रहे हैं कि नहीं अभी आपसे नहीं होगा, आप छोड़ दो, और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। क्योंकि मेरी लाइफ में ये आया था टर्निंग पॉइंट, जब मुझे मेरे पेरेंट्स ने भी मना कर दिया था, मेरे कोच ने भी मना कर दिया था, और वो मेरे लिए अच्छा सोच रहे थे, इसलिए कि वो चाहते थे कि मैं नहीं कर पाऊंगी, और उनको ऐसा लगता था कि मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ, मैं बहुत वीक हो गई हूँ। इवन डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया था कि मैं नहीं करूंगी, पर मुझे करना था और मुझे पता था कि मैं कर सकती हूँ। तो आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता सिर्फ आपके अलावा। आपको लोग सिर्फ बातें बता सकते हैं, आपके लिए अच्छी अच्छी बातें सुना सकते हैं, पर अगर आप खुद मेंटली प्रिपेयर नहीं हो उस चीज के लिए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, पहले मेंटली खुद को प्रिपेयर करना है कि मुझे करना है तो मैं ही कर सकती हूँ। आप किसी से भी सलाह ले सकते हैं, आपको कोई सलाह दे सकता है, पर आपको मोटिवेट आपको खुद को करना है। तो आप खुद में इतना स्ट्रांग हो जाओ कि आपको किसी की जरूरत ही ना पड़े। वाह! ये तो नमिता इतनी इतनी अच्छी बात की, ऑनेस्ट स्पीकिंग आई वाज एट लॉस ऑफ वर्ड्स, बट बहुत 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 ही अच्छी बात की आपने। एंड आई थिंक यही आपका हौसला ऐसे ही रहे। You keep smiling, you have a very cheerful personality, keep smiling, keep yourself motivated toward the sports. The whole of India is there to support you. And thank you for your amazing time with us and letting us know about what canoeing is. जो honest speaking नमिता का नाम देखने के बाद मैंने भी पढ़ा कि canoeing क्या होता है। सो एंड पूरा इंडिया के लिए नमिता इज इक्वल टू canoeing, so इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। And keep shining and keep achieving amazing success in your life. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड थैंक्स टू एवरीवन जो भी मेरे लिए हमेशा मेरे सपोर्ट के लिए रहते हैं, मेरे कोचेस, मेरी एमडी एकेडमी और गो स्पोर्ट्स। थैंक यू एवरीवन। Our today's episode is in association with Go Sports Foundation. You will find a donation link in the description of our episode. Please donate now and contribute towards making India a sporting nation. Thank you for liking, thank you for watching, and thank you for sharing. But please do subscribe on our channel Sportsy Says and help us spread the word about Sportsy.